Very good morning, 8th class. How are your studies going on, children? Have you started revising your lessons, listening them properly, understanding them? If you have any difficulty about any part of the chapter, you are free to ask me. You can message me your difficulty and I'll try to answer it. Okay? It's very important chapter about how Britishers' company rule was established in India. So we have seen English conquered nearly large part of India. Marathas and Mysore, Punjab, Sindh, Hyderabad, all these areas, Mumbai, all these areas were under English Empire now. Then in yesterday's lesson, we have read about the administration. How civil services, किसने इंट्रोड्यूस करी बताओ? लॉर्ड कॉर्नवालिस, he introduced civil services and the empire was divided into provinces, presidencies, they were divided into districts and 3 important officers. Each district there was a collector, a magistrate and a judge. So this was civil administration, right? Today we will study about the colonial army and its composition. उनकी आर्मी कैसी थी? आर्मी के बेसिस पर ही तो उन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया था. They fought with local rulers and then with the help of subsidiary alliance and doctrine of lapse, they conquered a large part of India. So the colonial army and its composition. Army was another important pillar of the British regime in India. Regime means rule. हाँ, regime का मतलब क्या होता है बच्चों? Rule. तो British rule in India. It was mainly organized. Army was mainly organized to push the colonial interest of the English. इंडिया में इंग्लिश ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आर्मी को यूज़ किया. It played 3 important roles in the expansion of the British Empire. तो आर्मी ने क्या important role play किया? In 3 ways, army played an important role to expand the English Empire in India. It saved the company from the European rivals. कौन कौन थे यूरोपियन राइवल्स? द फ्रेंच, द डच, द पोर्चुगीज़. और कंपनी को बचाया उन्होंने, आर्मी ने. Conquered the dominions of the native rulers. Native rulers they defeated. After all, English defeated our Indian rulers with the help of the army and crushed revolts when they broke out. And if any ruler or anybody else tried to revolt against British, army ने उसे crush किया. तो British army played a very important role. The composition, अब कैसे बनी हुई थी देखो ये army. The composition of the company's army. Firstly, although out of necessity the English company had to recruit Indian soldiers in the army. देखो इंग्लिश आर्मी थी लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए टू ब्रिंग द सोल्जर्स, ऑल द सोल्जर्स ऑफ द आर्मी फ्रॉम इंग्लैंड. बहुत कॉस्टली हो सकता था ये कि सारे सोल्जर्स इंग्लैंड से लेकर आए और आर्मी भी बड़ी चाहिए थी, इतना बड़ा कंट्री था. तो दे वर फोर्स्ड टू रिक्रूट, भर्ती करने पड़े उन्हें इंडियन सोल्जर्स. बट दे वर नेवर अलाउड टू अक्वायर एनी हायर पोस्ट. बट दो सोल्जर्स वर सिंपली सिपॉय. जो सैनिक होता है ना, लड़ता है. ऑफिसर पोस्ट कभी भी किसी इंडियन को नहीं दी गई. सो इंडियन सिर्फ क्या रोल प्ले करते थे? वो फाइटिंग इन द वॉर एज अ सोल्जर. इट्स ऑफिसर्स वर एक्सक्लूसिवली इंग्लिश. ऑल द ऑफिसर्स वर English. Secondly, the company's soldiers were armed with muskets and matchlocks, unlike the Indian soldiers who were given training in archery and the use of the swords. देखो जो कंपनी के, अब सारे soldiers were not Indian. There were some soldiers who were brought from England. तो उन्हें तो वो राइफल्स वगैरह चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी. हाँ, सारे जो भी लेटेस्ट उनके पास वेपन्स थे. लेकिन सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को उन्हें सिर्फ किस में ट्रेनिंग दी जाती थी? आर्चरी. व्हाट इज़ आर्चरी? तीरंदाजी, है ना, तीर कमान चलाना एंड द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड. तो इंडियन सिपॉइज, इंडियन सोल्जर्स को हमारे ट्रेडिशनल वेपन्स मिलते थे और इंग्लिश सोल्जर्स को मॉडर्न वेपन्स मिलते थे.
Thirdly, under the English company, the infantry regiments became more important. Infantry कहते हैं पैदल सैनिक, है ना. अलग अलग तरह की रेजिमेंट होती है ना उस समय. हॉर्स राइडर्स जिसे कैवलरी कहते थे, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ज़्यादातर किस में होते थे बच्चों? इन्फेंट्री, पैदल सैनिक, और उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. The soldiers of the company were subjected to European style of training, not Indian style of training but European style of training. Much emphasis was laid on maintaining discipline for more than before. बहुत importance दी जाती थी discipline को. So this was British Army. After all, army में तो discipline सबसे important होता है. So it was given importance. Next हम पढ़ेंगे about the composition of police. भाई आर्मी इज़ टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज. हाँ, वो ऊपर हमने रीजंस पढ़े थे. टू क्रश द रिवोल्ट्स, टू डिफीट यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स. लेकिन जो एवरीडे इंटरनल पीस मेंटेन करने का काम था वो किसका था? पुलिस का. द पुलिस वॉज द थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द ब्रिटिश रूल. ठीक है, पहले वो सिविल सर्विस, सेकेंड आर्मी एंड थर्ड द पुलिस. बिफोर दैट द पुलिस ड्यूटीज़ वर असाइंड टू जमींदार्स. हाँ, पहले ये पुलिस का रोल कौन प्ले करते थे? ज़मींदार. टू मेंटेन पीस, वो फार्मर्स को डिसिप्लिन में रखना. बट सून दे वर रिलीव्ड ऑफ दीज ड्यूटीज़ एंड अ सेपरेट पुलिस डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने सिविल सर्विस स्टार्ट करी थी. ये सारा सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही बनाया हुआ है. पहले ज़मींदार जो काम देखते थे, हाँ, फार्मर्स को कंट्रोल में रखने का, अब उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, दैट इज़ द पुलिस. द थाना तो पता है ना सबको क्या होता है, बस वो उसी समय बने थे. द थानाज वर हेडेड बाय दारोगा. आज जिसे हम इंस्पेक्टर कहते हैं, एट दैट टाइम ही वॉज नोन एज दारोगा. डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वॉज द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वो जो SP होता है आज. द विलेजेस, ये तो हो गया सिटी का विलेज. The watchman had to carry out his duty and was maintained by the villagers themselves. Villages में security maintain करने का काम was of चौकीदार. They did all that work. The police succeeded in curbing the anti-social elements. इनको पकड़ने का काम, ये लोगों के बीच में परेशानी नहीं हो. कौन है ये anti-social? Thugs, thief and dacoit. चोर, डाकू, ठग, इनको पकड़ने का काम करती थी पुलिस. इट ऑल्सो हेल्प्ड इन सप्रेसिंग द ग्रोइंग नेशनल स्पिरिट. अगर लोगों में देशभक्ति की भावना, व्हाट इज़ नेशनल स्पिरिट? हाँ, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, इसको दबाने का काम भी करती थी पुलिस. देखा ना, लोगों पर लाठी चार्ज होते थे, डंडे मारे जाते थे, तो दैट वर्क वॉज ऑल्सो डन बाय द पुलिस. As in the army, discrimination was practiced against the Indians in the police force. जैसे हमने अभी आर्मी के बारे में पढ़ा था ना, भेदभाव हो रहा है इंडियन और इंग्लिश सोल्जर्स में. सेम थिंग वॉज इन द पुलिस ऑल्सो. इंडियन पुलिस और इंग्लिश पुलिस में भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था. ओनली द इंग्लिश वर कंसिडर्ड फिट फॉर हायर पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वही बात, सिंपल सिपाही इंडियन, लेकिन ऑफिसर पोस्ट पर इंग्लिश. In fact, the police could never become popular among the Indian people because it was more a source of harassment. लोगों को डराने धमकाने का. जैसे आज पुलिस का नाम सुनते ही लोग, एक कॉमन आदमी डर जाता है, अरे पुलिस डर गया. बस वो ही डर उस समय भी था. वो लोगों को दबाने का काम ज़्यादा करते थे, हाँ, डरा कर रखना ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना बोले. Then help. It oppressed the peaceful inhabitants and accepted bribes. They were even taking bribe. What is bribe? रिश्वत लेते थे और लोगों को डरा धमका कर रखते थे. Next we'll study about the judicial system. What type of judicial system was there? In the beginning, the administration of justice was carried out on the basis of traditional laws of the Indian people. जो हमारे किंग्स के बनाए हुए लॉज थे, उनके हिसाब से सारा काम चलता था, सारा जस्टिस होता था. इन द केस ऑफ द हिंदूज, द शास्त्र, किसके हिसाब से? जो हमारे शास्त्र कहते हैं,
एंड इन द केस ऑफ द मुस्लिम्स द शरीयत, ये मुस्लिम लॉज होते हैं. तो ये इस तरह से जो हमारे शास्त्र कहते हैं उस हिसाब से हिंदूज़ के लिए लॉ होता था और मुस्लिम्स के लिए अकॉर्डिंग टू शरीयत. एंड इन केस वॉज द बेसिस ऑफ जस्टिस. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स established a civil and a criminal court in each district. तो जैसे अभी है ना सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, उस तरह से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने हर डिस्ट्रिक्ट में फिर ये कोर्ट्स बनाए. वाइल द सिविल कोर्ट्स वर प्रिसाइडेड ओवर बाय द कंपनीज कलेक्टर्स. कंपनी जो कलेक्टर अपॉइंट करती थी वो सिविल कोड में बैठते थे. सिविल का मतलब होता है जो एक तो क्रिमिनल जिसमें सारे लड़ाई वाले केसेस आते हैं, और फाइनेंस को लेकर और कोई जो इश्यूज़ होते हैं ना वो सिविल कोर्ट में आते हैं. द क्रिमिनल कोर्ट्स वर लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द नेटिव्स, क्योंकि वो दंगा फसाद, मार पिटाई, इस तरह के जो होते हैं ना केसेस, वो मर्डर, किलिंग्स, वो सारे केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स में आते थे, तो वो नेटिव्स के हाथ में थे. और पैसा, क्योंकि सिविल केसेस में सारे फाइनेंसेस होते हैं, तो दे वर अंडर द कलेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी. 2 कोर्ट्स ऑफ अपील, 2 जगह थे. सदर दीवानी अदालत, अंडरलाइन करो, 2 थे. सदर दीवानी, दीवानी मीन्स सिविल, एंड सदर निज़ामत अदालत, ये 2 बनाए गए थे कोर्ट ऑफ अपील जहाँ पर कॉमन पीपल अपील कर सकते थे. अ डाइजेस्ट ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम लॉज व कंपाइल्ड, एक कंपाइलेशन, इकट्ठे किए गए, एक बुक प्रिंट की गई जिसमें हिंदूज़ के लॉज और मुस्लिम के लॉज थे. टू गाइड द जजेस, ताकि उसके हिसाब से जजेस अपने डिसीजंस दे सकें. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड विथ इम्पे एज इट्स चीफ जस्टिस. और पहली बात, उस समय देखो कौन सा ईयर है, 1773, एंड एट दैट टाइम कैलकाटा वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. तो वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया और इम्पे वॉज इट्स चीफ जस्टिस. बाय द एक्ट ऑफ 1781 इट वॉज डिक्लेयर्ड. फिर एक और एक्ट पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट बनाया. फिर 1781 में अनदर एक्ट वॉज पास that decided that the English law would be strictly applied only in the cases of the English, and the Indians would be tried under their own traditional law. तो 2 तरह से डिवीजन हुआ. If the cases are related to Indians, तो वो इंडियन लॉ, वो शरीयत और शास्त्र के हिसाब से, और ये जो डाइजेस्ट बनाई गई थी, इंडियंस को इंडियंस के हिसाब से जस्टिस मिलेगा, और जो इंग्लिश अगर इन्वॉल्व हैं तो जो इंग्लिश लॉज हैं, इंग्लैंड में बने हुए लॉज हैं, उनके हिसाब से उन्हें जस्टिस दिया जाएगा. इन 1793 द फेमस कॉर्नवालिस कोड फिर बना. लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, डिड मच इन इंडिया. उन्होंने एक कोड बनाया, वॉज कंपाइल्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द न्यू जुडिशियल सर्विसेज. जैसे सिविल सर्विसेज वैसे ही जुडिशियल जुडिशियल सर्विसेज भी बनाई गई. और उनके लिए फिर कॉर्नवालिस कोड बनाया ताकि जजेस इसके हिसाब से डिसीजंस दे सकें. हाउएवर द इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ वॉज कोडिफाइड in 1833 by the Indian Law Commission. It gave the Indian people a sense of security as justice was now no longer dispensed by the arbitrary whims, marzi. What is the arbitrary whim? मनमर्जी of the judging authority. अब जजेस की मर्जी से डिसीजन नहीं होते थे. इंडियन सिविल कोड, इंडियन लॉ बनाए गए इन 1833, और इसके हिसाब से अब जजेस सारे डिसीजन देते थे. द कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन का मतलब होता है लिखना सारा, है ना, ऑफ लॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज़ नोन एज द रूल ऑफ लॉ. और आज भी क्या कहलाता है बच्चों हमारे यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ. कानून के हिसाब से सारा काम होता है. यू कैनॉट गो अगेंस्ट द लॉ. तो वी हैव रूल ऑफ लॉ. वो उस समय एस्टेब्लिश हुआ, विच मैंट दैट एवरीबडी वॉज इक्वल बिफोर लॉ. सबको कानून के हिसाब से काम करना है. सो दिस इज द जुडिशियल सिस्टम. अब हम समझेंगे व्हाट इज दिस रूल ऑफ लॉ. देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द ब्रिटिश इन इंडिया एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ.
मानना पड़ेगा कि रूल ऑफ लॉ की स्टार्टिंग किसने करी थी? ब्रिटिश ने करी थी. एवरीबडी वॉज कंसिडर्ड इक्वल बिफोर द लॉ. यही है रूल ऑफ लॉ, पढ़ा ना ऊपर हमने. एवरीबडी वॉज इक्वल बिफोर लॉ. ये आज भी याद रखना, बिकॉज स्टिल इन इंडिया वी हैव रूल ऑफ लॉ. Everybody was considered equal before the law, irrespective of caste, creed, sex or religion. कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर है. The distinctions that were practiced between the Hindus and the Muslims, the Brahmins and the non-Brahmins, were done away with, removed. What is the meaning of done away with? Removed. अभी तक शास्त्र के हिसाब से हो रहा था, शरीयत के हिसाब से हो रहा था, तो सबको अलग अलग डिसीजन मिल रहे थे. अब सब खत्म. अब इंडिया में कोडिफिकेशन हो गया, लॉज लिखे गए, और अब उन लॉज के लिए सब बराबर हैं. आप किसी भी रिलीजन के हों, आप किसी भी कास्ट के हों, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मेल, फीमेल, हिंदू, मुस्लिम, सबके लिए सेम लॉ. नाउ इन द आइज ऑफ लॉ अ क्रिमिनल वॉज अ क्रिमिनल नो मैटर ऑफ विच कास्ट और रिलीजन ही बिलोंग. दैट इज रूल ऑफ लॉ. बट क्रिटिक्स पॉइंट आउट सर्टेन डिफेक्ट्स. ये जो रूल ऑफ लॉ है इसकी कुछ कमियां बताई हैं कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे. एंड डिस्क्रिपेंसीज इन द रूल ऑफ लॉ. कुछ कमियां रह गई थी इस रूल ऑफ लॉ में. द रूल ऑफ लॉ एनविसेजेस, सेज मानता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनविसेज? सेज ऐसा मानता है रूल ऑफ लॉ द सेंस ऑफ इक्वालिटी विच द इंग्लिश फेल टू डिलीवर. कहने को तो रूल ऑफ लॉ ने क्या कहा? दैट एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. लेकिन ऐसा था थोड़ी ना इंडिया में उस समय. इंग्लिश वो हमें नहीं दे पाए, एज दे हैड सेट अप सेपरेट कोर्ट्स फॉर द यूरोपियंस. इंडियंस के लिए रूल ऑफ लॉ था, वो यूरोपियंस के लिए नहीं था. यूरोपियंस के लिए उस समय देवर सेपरेट कोर्ट्स जिसमें दोज यूरोपियंस वर गिवन जस्टिस. उनके जजेस भी अलग होते थे, उनके लॉयर्स भी अलग, और उनके लिए लॉज भी सेपरेट थे. एज इंडियन जज कुड नेवर ट्राई अ यूरोपियन क्रिमिनल. इफ़ देर इज़ एनी यूरोपियन क्रिमिनल, उस पर कोई केस है, क्रिमिनल केस, तो उसका केस एक इंडियन जज नहीं सुन सकता था. मोर ओवर वेन अ यूरोपियन क्रिमिनल वॉज चार्ज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ अ नेटिव. अगर मान लीजिए कोई यूरोपियन है, इंग्लिश स्पेशली, यूरोपियन कौन है यहाँ पर? तो इंग्लिश ही है ना सारे उस समय. तो अगर उसने किसी इंडियन के खिलाफ किसी को मार दिया है या कुछ है ना, क्रिमिनल केस है अगेंस्ट अ नेटिव, ही वॉज ऑफन लेट ऑफ आफ्टर पेइंग सम फाइन. उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता था. जबकि क्रिमिनल ऑफेंस, हाँ, जेल होती है या जो भी सज़ा देनी होती है. लेकिन अगर किसी यूरोपियन ने इंडियन के खिलाफ कोई क्राइम किया है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता था आफ्टर सम फाइन. Thus one can say that the English gave us written codes of laws but they lacked equality. ये काम पॉजिटिव है कि उन्होंने हमें लिखे हुए written laws दिए, but those laws were not equal. They were distinctive. यूरोपियंस के अलग और इंडियंस के लिए अलग. Moreover, the whole judicial system became very expensive. बहुत खर्चीला था. Only the rich people could afford lawyers. Thus, the so-called equality before law was for the rich people and not for the poor people, poor masses who were as helpless as before. तो ये रूल ऑफ लॉ सिर्फ नाम के लिए था, गरीबों के लिए, क्योंकि वो रिच लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे. एंड आफ्टर ऑल यू नीड अ लॉयर टू फाइट अ केस इन कोर्ट. तो दे कैन ओनली रिच पीपल कुड अफोर्ड. तो कहने के लिए रूल ऑफ लॉ था इंडिया में, लेकिन इट वॉज नॉट फॉर एवरीवन. तो ये कुछ कमियां हैं जो क्रिटिक्स ने बताई हैं. एंड नाउ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ द लेसन. हमने पूरा समझा बच्चों, स्टार्टिंग टिल एंड. फ्रॉम द अबव स्टडी वी कैन ईजीली डिस्कर्न द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना. सिविल सर्विसेज, देन पुलिस, देन आर्मी, देन जुडिशियल सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, हमने सब समझा. दैट वर क्वाइट न्यू इन इंडिया. और ये सब चीज़ें इंडिया के लिए नहीं थी. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रूलर्स, किंग्स, ये सब था उस समय नहीं था. ऑफकोर्स आर्मी होती थी, बट दैट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ डिफरेंट वे. हाँ, बाकी ये सब नहीं था. तो इट वॉज समथिंग न्यू फॉर इंडियंस. द इंडियंस वर गिवन नो शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, है ना. वो लोकल जो सिपाही का काम कर रहे हैं, एक पुलिस में जो पुलिस वो होता है उसका काम कर रहे हैं, ऑफिशियल
और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट इंडियंस को नहीं दी जा रही है. They were also not given post of high responsibility either in the judicial, revenue, police or army wings of the administration. So all administrative decision taking post were for Europeans, and जो local काम होता है that post was given to the Indians. The British never regarded this country as their own, and so a systematic plunder of the country began. Loot. What is systematic plunder? लूटना. धीरे धीरे वो इंडिया से सारे रिसोर्सेज, सारी वेल्थ दे स्टार्टेड टेकिंग टू इंग्लैंड. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ बट द यूरोपियंस एंड इंडियंस वर नेवर रिगार्डेड एज इक्वल. ये भी डिफरेंस था. लास्टली एज द लॉ वर कोडिफाइड, जैसे जैसे लिखे गए लॉज, सो द गवर्नमेंट बिगैन टू रन अकॉर्डिंग टू द रिटन लॉज इंस्टेड ऑफ द विम्स, मर्जी ऑफ द रूलर्स. पहले सारे डिसीजन कौन लेता था? द किंग्स. खुश है तो वैसे डिसीजन दिया, नाराज़ है तो वैसे डिसीजन दिया. लेकिन अब ऑल द लॉज आर रिटन एंड एवरीबडी हैज़ टू गिव डिसीजन, है ना, एवरीबडी हैज़ टू फॉलो दोज लॉज. दिस वॉज गिवन बाय यूरोपियंस टू इंडिया. सो विथ दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन. I hope you understood the lesson. It's very important. Go through it again and again. Videos सुनो बार बार. अगर नहीं समझ में आ रहा है, you'll be able to understand. And then you have difficulty. Still children, I am saying to you again and again, whenever you ask me anything, give me your name, class and section. आप डायरेक्टली क्वेश्चन डाल देते हो, मुझे समझ में ही नहीं आता कौन बच्चा है. एटलीस्ट आई शुड नो विच चाइल्ड इज आस्किंग द क्वेश्चन. सो अगर बिना नेम के, क्लास के, सेक्शन के मेरे पास कोई क्वेरी आएगी, आई वोंट आंसर इट. फिर कहना मत कि मैम नहीं बता रही है. तो बिना नेम के कोई क्वेरी नहीं. Write your name, class, section, and then you are free to ask whatever you want. Okay? So with this we come to an end of this lesson. Next we'll continue with next history chapter only. ताकि आप एक flow में पढ़ते जाओ. Then we'll move on to another side. तो अभी हम इसके बाद हमारा next lesson history का ही start करेंगे. Till then keep reading.